Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I am going to give some important MCQ question from the chapter production and cost of microeconomics. So your first question is, in this production function one factor of production is variable and all others जितने भी factors of production हैं that remain fixed or constant. ठीक है, तो first option is variable proportion, second is short run production function, third is long run production function and fourth option is both first and second. So the answer will be both first and second. क्यों? क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को ही हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ टाइम पीरियड विच इज़ इनफ टू मेक change in all inputs are variable. In this level production can be changed by changing all inputs. ठीक है, long run production function, short run production function, both long and short run or none of this. So the answer will be long run production function. इसमें इतना टाइम होता है कि सारे जितने भी inputs हैं या factors of production है उनको हम change कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर लेते हैं, पर उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Now the next question number third says, if TP increases at an increases rate, then MP also increases, MP declines or becomes zero or becomes negative. So the answer will be increases. TP increase होता है increasing rate पे, तो उसके साथ MP भी increase होता है. Next question is, when TP is maximum, TP जब total product maximum हो जाता है उस केस में MP का क्या characteristic होता है, क्या status होता है? MP start increase, it decline, become zero, become negative. So MP become zero. So option will be answer will be option number third. Now your next MCQ states, when MP is greater than AP, मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपका बड़ा होता है एवरेज प्रोडक्ट से तो उस केस में AP का क्या नेचर होता है? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, AP राइजेस. जब MP AP से ग्रेटर होता है तो उस केस में AP जो है वो इंक्रीज होने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब MP AP के इक्वल होता है उस केस में AP का क्या नेचर रहता है? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, AP जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और मैक्सिमम होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है. नाउ योर नेक्स्ट MCQ इज़, डैश आर द कॉजेज़ फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न. जो हमारी स्टेज होती है इंक्रीजेस रिटर्न की वो किस वजह से आती है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर और ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशनेबिलिटी रिजल्ट्स इन. किस स्टेज पे इसकी वजह से कौन सी स्टेज अकर होती है? स्टेज 1 ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 3 ऑफ negative return or none of these. So the answer will be option number second stage of diminishing return. इस रीज़न या इस कॉज की वजह से अकर होती है. Now your next question is, dash is the sum total of explicit and the implicit cost. So your answer will be option number 4, economic cost. economic cost जो होता है वो summation होता है आपका explicit as well as implicit cost का. Next question है, dash are the features of total fixed cost. It remains constant at all the levels. वो जो रहती है. Next है, it is non-zero even at zero output level. Next है, total cost at zero level of output is equal to total fixed cost. And the next option is all of the above. So above जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों फीचर्स हैं आपके टोटल फिक्स कॉस्ट के. सो द ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव. Now your next question is, dash are the features of AFC या average fixed cost. So the option first is, it diminishes with the increase in output. Next है, it is a rectangular hyperbola. Next है, it cannot intersect x axis or y axis. And next option is all of the above. So जो तीन points में mention करे गए हैं वो तीनों ही features हैं AFC के. So the answer will be option number fourth, all of the above. Next है, when MC जो है वो smaller होता है average variable cost से तो उस केस में average variable cost का क्या nature होता है, उसका क्या स्टेटस होता है? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, इट फॉल्स. मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट स्मॉलर होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल होने लगती है, गिरने लगती है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, अगर MC जो है मार्जिनल कॉस्ट अगर अब वो इक्विवेलेंट है या इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो उस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर होता है? सो उस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट है, अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन इज अचीव व्हेन जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है. ठीक है, फुल स्टॉप. इट इज़ द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
फर्स्ट दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। ये वो कंडीशन होती है जब आपका जो प्राइस होता है P वो इक्वल होता है आपके एवरेज कॉस्ट से। Now your next MCQ number 15 states it occurs when a firm is covering its variable cost only. Here the firm is incurring loss of fixed cost, मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के स्मॉलर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जो एवरेज रेवेन्यू है दैट विल बी स्मॉलर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को या इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, शट डाउन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेज एंड पॉजिटिव द टोटल रेवेन्यू विल बी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो उस केस में टोटल रेवेन्यू का क्या नेचर होगा? सो द आंसर विल बी फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू जो है वो इट विल इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट। Now next important MCQ is land is subject to dash returns. So land is subject to option number third, diminishing returns. Next question, and dash is regarded as the primary factor of the production. So the answer will be option number first. Land जो है वो हमेशा कहलाता है एक primary factor of production. Now in next question you have to match the following. सो आपको लेफ्ट हैंड साइड 5 ऑप्शंस मिलेंगे एंड राइट हैंड साइड आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। नंबर फर्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन विल बी योर रिलेटेड विथ ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग यूटिलिटी। नेक्स्ट है लैंड। लैंड आपका जो है वो रेंट से रिलेटेड आ जाता है। लेबर। लेबर आपकी जो है वो वेजेस से रिलेटेड आ जाती है, ऑप्शन नंबर एफ। रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल वो आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है, सो द ऑप्शन विल बी ई। एंड द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर विल बी प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। सो द ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री, ये आपका वेग ऑप्शन है, ये आपका इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वेस्ट ऑप्शन है। ये जस्ट आपको कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो एग्जाम में, इसलिए आपको जो है राइट हैंड साइड 6 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। Now your next MCQ is why AFC average fixed cost curve never touches the x-axis, so lies very close to x-axis, मतलब x-axis के वो lie closely करता है, उसके पास में ही रहता है, लेकिन तब भी वो x-axis को AFC curve टच नहीं करता है। ऐसा क्यों? So the option will be option number, answer will be option number first, because जो total fixed cost है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, इस वजह से जो average fixed cost है वो x-axis को टच नहीं करता है। नेक्स्ट है the general shape of TPP इन द शॉर्ट रन इज़, तो आपको यहाँ पे टीपीपी कर्व की जो शॉर्ट रन में अकर होता है उसकी शेप के बारे में बताना है। तो उसकी जो शेप होती है दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनवर्स यू शेप में वो होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, ये आपके 1 मार्क्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।